हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे फोर्स ऑन अ करंट करिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो whenever a current carrying conductor is placed in magnetic field, it experiences force. That is the basic concept, bachcho. So let us come to the point. A magnet exerts a mechanical force on a current carrying wire, and if the wire is free to move, this force can produce a motion in a wire. बच्चों, जब भी कोई करंट करिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में या किसी मैग्नेट के सराउंडिंग में होता है, तो अंडर दैट कंडीशन that carrying conductor experiences force, okay, and that force produces motion in the conductor. So according to Faraday discovered the concept when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a mechanical force is exerted on the conductor and which can make the conductor move. So whenever a current carrying conductor is getting placed in magnetic field, mechanical force are acting on that conductor, and due to that force the conductor starts moving or move. This is known as the motor principle also. बच्चों, मोटर का जो रोटर होता है बच्चों, जो रोटेट करता है, दैट इज ऑल्सो फॉलोइंग दिस कॉन्सेप्ट दैट मोटर की जो कॉइल होती है उसमें करंट होती है और उसके सराउंडिंग में मैग्नेट्स होता है बच्चों. सो व्हेनेवर अ करंट करिंग कंडक्टर is in magnetic field or in surrounding to the magnetic field or in surrounding to the magnet, then force is acting on that, and due to that force they starts moving. Forms the basis of large number of electrical devices like electric motor and moving coil galvanometer. ये जो करंट करिंग कंडक्टर बच्चों जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से कि फोर्स लगता है उस करंट करिंग कंडक्टर पर, यह जो है बेसिक है बच्चों. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड इन मोटर. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड इन मूविंग कॉइल galvanometer. So when a current carrying conductor is placed in magnetic field, a mechanical force is exerted on the conductor which makes it move. बच्चों, अगर कोई करंट करिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो that current carrying conductor will be moving due to the mechanical force exerted by the magnetic field. बच्चों, जब करंट फ्लो होगा तभी यहाँ पर जो है फोर्स एक्सपीरियंस होगा. इसको मैं आपको सेपरेट स्लाइड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जैसे मान लीजिए अपने पास एक वायर है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और इस डायरेक्शन में लेट अस अज्यूम करंट इज फ्लोइंग. सो अगर यह कंडक्टर है बच्चों, दिस इज अ कंडक्टर एंड करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर इन दिस डायरेक्शन, और यह कंडक्टर कहां पर प्लेस्ड है बच्चों? लेट अस कंसीडर इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. यह जो प्लेन मैंने कॉपी का प्लेन बनाया बच्चों, इसमें मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड. ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? दिस क्रॉस इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ magnetic field. Cross is representing direction of magnetic field. This is representing direction of magnetic field in the plane of paper. In the plane of paper. और इसका this is representing direction of magnetic field and which is perpendicular to the plane of the paper. Which is perpendicular to the plane of paper, which is perpendicular to the plane of paper and going inward, to the plane of paper and going inward. बच्चों, यहाँ पर यह जो कंडक्टर है इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, आई करंट है. सो एज पर द फैराडे लॉ, यहाँ फैराडे ने डिस्कवर किया जो लॉ, वो कहता है बच्चों कि अगर कोई करंट करिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस कंडक्टर पर फोर्स लगेगा and the direction of force will be decided by using Fleming left hand rule. The point will come and in the next slide it will come, but right now I am explaining. Whenever a current carrying conductor is placed in magnetic field, it experiences force, and the force is making the object to move
और बच्चों डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, सो कैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं बच्चों, दैट आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट स्लाइड, इन द नेक्स्ट कंटेंट। बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू दिस कंडक्टर विल बी एक्सपीरियंसिंग फोर्स। तो फोर्स का डायरेक्शन बच्चों अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, लेट अस लर्न दिस वन आल्सो। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सेज कि अगर कंडक्टर में करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दिस इज द क्रॉस डायरेक्शन, तो अपने अपने लेफ्ट हैंड के जो 3 फिंगर्स है बच्चों, एक होता है 4 फिंगर, थंब के जस्ट बगल वाला जो फिंगर होता है बच्चों उसको 4 फिंगर कहते हैं। एक होता है सेंट्रल फिंगर बच्चों, दिस इज सेंट्रल फिंगर, दिस इज सेंट्रल फिंगर। लेफ्ट हैंड का 4 फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? दिस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेंट्रल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? सेंट्रल फिंगर विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ current in the direction of current in the conductor, and thumb will represent direction of force acting on conductor। बच्चों अगर आप अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग बच्चों, या क्रॉस है कॉपी के प्लेन में परपेंडिकुलर है, तो अपने लेफ्ट हैंड के 4 फिंगर को क्रॉस के डायरेक्शन में रखेंगे, और जो सेंट्रल फिंगर है बच्चों उसको अगर करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, इफ यू विल कीप दैट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब जो होगा बच्चों दैट विल बी एक्टिंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। सो थंब विल बी एक्टिंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। सो इस पर फोर्स जो है बच्चों, या करंट करेंगे कंडक्टर जो इस पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, तो फोर्स विल बी एक्टिंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। यहाँ पर भी बच्चों सेम कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस कंडक्टर पर फोर्स किधर लगेगा, दिस इज मैकेनिकल फोर्स, और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस करंट करेंगे कंडक्टर, इस पर फोर्स इधर लगेगा बच्चों और यह इधर मूव करने लग जाएगा। सो when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a mechanical force is exerted on the conductor and which makes it move, जो इसको मूव कराता है। The direction of force acting on current carrying wire in a magnetic field is perpendicular to the direction of the current and perpendicular to the direction of magnetic field। कह रहे बच्चों फोर्स जो लग रहा है वह फोर्स करंट के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो कंडक्टर है इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है और फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, तो फोर्स और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर है, सेटिस्फाई कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों यह जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्रॉस, यह परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है, और यह जो फोर्स है बच्चों यह तो उसी के प्लेन में है और यह क्रॉस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते बच्चों, इसके बीच में भी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। सो दिस 2 पॉइंट्स आर आल्सो सेटिस्फाइंग इन दिस 2 डायग्राम, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट बच्चों। फोर्स का जो डायरेक्शन है बच्चों वह करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, मैं एक और स्लाइड यहाँ पर आपके लिए ले रहा हूँ और इसमें मैं आपको यह एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम बच्चों रिवर्स कर दें, तो पहले पॉइंट्स को डिस्कस कर लीजिए, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट करेंग कंडक्टर ओनली व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों जब मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए बी जो है मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और कंडक्टर जो है उसमें करंट वाई एक्सिस के लॉन्ग फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन होगा बच्चों, जब भी कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा तभी फोर्स लगेगा, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं लगेगा। अदरवाइज
फोर्स विल बी जीरो। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है F इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा, वेयर आई इज, जो कि आपको आगे के क्लास में पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है आपको, तो इसलिए ये चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आगे की क्लास में जब आप अपर क्लासेस में आएंगे बच्चों, 12th में आएंगे, तो ये सारे फॉर्मूला जो है आपको डिराइव भी करना होगा और समझना भी होगा। फोर्स का जो मैकेनिकल फोर्स लगता है बच्चों करंट करिंग कंडक्टर के ऊपर, उसका एक्सप्रेशन होता है आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल, वेयर आई इज करंट, L is length of conductor, L is length of conductor, और B जो है बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा इज रिप्रेजेंटिंग एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एंगल बिटवीन करंट I and magnetic field B and magnetic field B। सो बच्चों अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू एल इंटू बी, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती है। सो टेक 1, सो दिस विल बी आई एल बी। सो जब बच्चों एंगल 90 डिग्री होगा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, देन ओनली द मैक्सिमम फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, और यह जो फोर्स होगा बच्चों दिस विल बी द मैक्सिमम फोर्स, दिस विल बी एफ मैक्सिमम। सर क्यों मैक्सिमम फोर्स होगा, क्योंकि बच्चों साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वह 90 डिग्री पर होगी, अगर बाकी कोई भी एंगल लेंगे बच्चों तो वह एंगल 90 डिग्री से कम होगा, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू फिर 1 से कम होगा, तो जो क्वांटिटी मिलेगी बच्चों वह आई एल बी से छोटा ही मिलेगा, तो इसलिए यह जो वैल्यू हमें 90 डिग्री पर मिल रहा है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स। So it is only possible when current and magnetic field are at 90 degree with respect to one another. No force acts on a current carrying conductor when it is parallel to the magnetic field. बच्चों अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट करिंग कंडक्टर भी इधर ही है तो थीटा यहाँ पर 0 डिग्री हो गया। सो फोर्स का अगर एक्सप्रेशन देखेंगे तो F इक्वल टू आई एल बी इंटू साइन थीटा, सो आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा की जगह पे 0 डिग्री, सो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है बच्चों, सो फोर्स विल बी 0 न्यूटन। सो कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर कोई कंडक्टर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखा हुआ और करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट करिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड कैन ऑल्सो बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों फोर्स का डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड में करंट करिंग कंडक्टर पर लग रहा है उसका डायरेक्शन रिवर्स हो सकता है अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, और इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट इज प्लेस्ड आर नोन, then the direction of the force acting on the current carrying conductor can be found out by using Fleming left hand rule। बच्चों ये दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। यह बताया मैंने आपको बच्चों कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जैसे फर्स्ट केस में हमने यहाँ पर लर्न किया था कि जब ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है कंडक्टर पर। अगर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इस प्लेन में रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स करने का मतलब है डॉट की क्रॉस की जगह पे डॉट ले लीजिए आप, अगर यहाँ पर डॉट आ जाए, ठीक है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड है। सर ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस प्लेन। सो व्हाट इज दिस डॉट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और कौन सा डायरेक्शन है बच्चों, सो डॉट इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड which is perpendicular to the plane, which is perpendicular to the plane and outward। बच्चों ये आउटवर्ड डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक कंडक्टर को बना लेते हैं, जैसे पहले बनाया था, कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन है उसको हमने चेंज नहीं किया, ठीक है।
खाली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। तो बच्चों फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन निकालना है हमें, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करेंगे। तो अपने जो लेफ्ट हैंड है बच्चों, उसके फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग प्लेस करेंगे, जो कि कॉपी के प्लेन में, आप जब कॉपी पे बना रहे होंगे तो उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। करंट जो है बच्चों, करंट विल बी फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, जैसे ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो सेंट्रल फिंगर जो है बच्चों वो करंट के डायरेक्शन को शो करेगा। सेंट्रल फिंगर जो है वो करंट के डायरेक्शन को शो करेगा। तो जो थंब होगा बच्चों, दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो फोर्स यहाँ पर बच्चों किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? सो इट विल बी एक्टिंग रिवर्स। जैसे पहले यहाँ पर देखिए इस तरफ एक्ट कर रहा था, अब उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो नाउ द फोर्स विल बी एक्टिंग इन द राइट डायरेक्शन, इस तरफ एक्ट करेगा बच्चों। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, एंड दिस कलर इज व्हाट? दिस इज कंडक्टर ओनली। ये जो करंट आई फ्लो हो रहा है बच्चों, दिस इज कंडक्टर ओनली, ओके। सो द फोर्स इज एक्टिंग इन द राइट डायरेक्शन। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स किया बच्चों, तो फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया। और एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है, उसको भी देख लीजिए, कि आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स ना करें। जैसे पहले क्रॉस था, वही रहने दीजिए, यह मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों। क्रॉस और डॉट मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। क्रॉस मतलब कॉपी के प्लेन का परपेंडिकुलर है और इनवर्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इनवर्ट डायरेक्शन में है। और यहाँ पर जब हमने कंडक्टर को प्लेस किया बच्चों, व्हेन वी आर प्लेसिंग कंडक्टर हियर, सो अगर हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन था हमने सेम रखा है, जो फर्स्ट डायग्राम मैंने बताया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस है, अब करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, तो भी फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। सो फोर्स जो है वह इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। नाउ फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट साइड में। कैसे सर? अगेन यू नीड टू अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब अप्लाई करेंगे बच्चों, तो यू विल गेट द फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है? तो फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है, जो कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। सेंट्रल फिंगर को जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में जो है स्ट्रेच करना है। तो थंब जो होगा बच्चों, वह आप देख रहे होंगे क्लियरली, जो है वो राइट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा बच्चों, एक चीज तो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है ना? क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि सर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये जो है, ये डॉट ही रहने दीजिए आप, और करंट का डायरेक्शन जो आपने कंडक्टर में कंसीडर किया था उसको रिवर्स कर दीजिए। तो कर सकते हैं बच्चों, ऐसा भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये जो कंडक्टर है इस केस का, इसको आप यहाँ पर बना दीजिए और करंट के डायरेक्शन को केवल आप रिवर्स कर दीजिए। तो यहाँ भी अगर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे बच्चों, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सो द फोर्स विल रिवर्स। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिवर्स नहीं किया, ये जैसा मैग्नेटिक फील्ड था वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनाया, केवल करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। इस दोनों केस में देखिएगा, तो फोर्स जब इधर लग रहा था तो अब फोर्स इस तरफ लगेगा। अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे बच्चों, एंड यू कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, दीज आर द पॉसिबिलिटी। सो जो मैंने सबसे पहले केस कराया था यह फर्स्ट केस था। उसके बाद बच्चों उसी में हमने यह सेकंड केस करा रहे हैं आपको, करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया तो फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तीसरा केस है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही रिवर्स कर दिया, करंट का डायरेक्शन सेम है तो भी फोर्स रिवर्स हुआ। और चौथे केस में क्या है बच्चों, कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यह इसके रेस्पेक्ट में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड तो वही रखा, लेकिन करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो फोर्स लेफ्ट हो गया। सो इस तरह से बच्चों आप मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि क्या सर अगर हम दोनों के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स होगा क्या? नहीं, अगर हम दोनों के डायरेक्शन को रिवर्स कर दे बच्चों तो फोर्स का डायरेक्शन वही रहेगा। इसको आप समझिए, अगर पहले क्रॉस था मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर था, और करंट जो है कंडक्टर में इस तरह से फ्लो हो रहा था, ठीक है।
अब दूसरे केस में आपने क्या किया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को भी रिवर्स कर दिया, आपने मैग्नेटिक फील्ड में रिवर्स कर दिया और करंट को भी आपने रिवर्स कर दिया। जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड था अब आपने डॉट मैग्नेटिक फील्ड कर दिया, और यहां पर कंडक्टर में जो करंट है बच्चों इसको भी आपने रिवर्स कर दिया, तो करंट इज ऑल्सो गेटिंग रिवर्स्ड। तो इस दोनों केस में बच्चों आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट केस मैंने आपको कराया था यहाँ पर कि जब इस तरह का क्रॉस और ऊपर की तरफ है तो लेफ्ट फोर्स लग रहा है, सो यहाँ पर बच्चों फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और यहाँ पर इस केस में भी बच्चों जो दूसरा वाला केस हमने बनाया है यहाँ पर भी फोर्स सेम डायरेक्शन में ही लगेगा। सो अगर आप दोनों करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो फोर्स का डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा बच्चों, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ रिवर्सेस, if the direction of if the direction of if the direction of current and magnetic field both reverses then the direction of force remains unchanged, और जो पहले था बच्चों वही रहता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको जो भी पढ़ाया है इस लेक्चर में बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आखिरी पॉइंट था बच्चों, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in which it is placed are known, then direction of force acting on a current carrying conductor can be found by using Fleming left hand rule. So यह कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, और मैं आपके लिए इस पॉइंट को एज इट इज लिख देता हूं बच्चों, जैसे पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है, समझिएगा, आपको समझना है आपको यहाँ पे कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है और वहां पर कंडक्टर दिया हुआ बच्चों, उसमें करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है और आपको पूछा जाएगा कि मार्क द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मार्क द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो एक टाइप का तो यह क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है बच्चों कि आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, to find the direction of force, we use Fleming लेफ्ट हैंड रूल। कभी भी RH फ्लेमिंग राइट हैंड रूल मत बोल दीजिएगा बच्चों, दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके बच्चों हम लोग जब भी कोई करंट करेंगे कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर इस केस के लिए मैंने आपको बताया था लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा एज पर द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट था यहाँ पर आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।